નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું ધ્વની। અત્યારે હાલ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, તેની પર નજર કરી અને આપને અપડેટ જણાવી દઈએ તો રશિયા માટે યુદ્ધ લડવા ગયેલા બે ગુજરાતીનો જે મામલો સામે આવ્યો હતો તે જ સંદર્ભે અપડેટ અત્યારે હાલ મળી રહી છે। હેલ્પરના નામે રશિયા લઈ જઈ અને યુદ્ધ મેદાનમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, તો ખાસ તે સંદર્ભે અપડેટ સામે આવી રહી છે। બોમ્બ અને બંદૂક ચલાવવાની તાલીમ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું। આ જે સમાચાર છે તે અત્યારે હાલ જીએસટીવી પર એક્સક્લુઝિવ આપ જોઈ શકો છો। અમદાવાદમાં સરખેજના યુવકે ભારત પરત આવવા માટેની અપીલ કરી હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। એજન્ટોએ ₹2 લાખ પગારની જે છે તે લાલચ પણ આપી હતી અને ત્યારબાદ તેમને લઈ જવામાં આવ્યા હતા। રશિયા માટે યુદ્ધ લડવા ગયેલા બે ગુજરાતીના મામલે અત્યારે હાલ અપડેટ સામે આવી રહી છે। તે સંદર્ભે હેલ્પરના નામે રશિયા લઈ જઈ અને યુદ્ધના મેદાનમાં તેઓને લઈ જવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું। તો આ સાથે જ બોમ્બ અને બંદૂક ચલાવવાની તાલીમ આપવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું હતું। આ સાથે જ ₹2 લાખ પગાર આપવાની એજન્ટે લાલચ પણ આપી હતી। તો રશિયા માટે યુદ્ધ લડવા ગયેલા બે ગુજરાતીનો જે મામલો સામે આવ્યો હતો, હેલ્પરના નામે રશિયા લઈ જઈ અને યુદ્ધ મેદાનમાં તેમને લઈ જવામાં આવ્યા હતા। બોમ્બ અને બંદૂક ચલાવવાની તાલીમ પણ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું અને સાથે જ કહી શકાય કે આ જે લોકો છે તેમને ₹2 લાખ આપવામાં આવશે તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું। સરખેજના યુવકે ભારત પરત આપવા માટે અત્યારે હાલ કહી શકાય કે માંગ કરી છે। એજન્ટોએ ₹2 લાખ પગારની જે છે તે લાલચ પણ આપી હતી। હેલ્પરના નામે ભારતના યુવાનોને એજન્ટો રશિયન આર્મીમાં જોડતા હતા। હેલ્પરનું પહેલા કહેવામાં આવતું હતું અને ત્યારબાદ આ જે યુવાનો છે તેમને રશિયન આર્મીમાં જોડવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું। ડ્રોન હુમલામાં હેમિલ નામના યુવકનું મોત થયું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે। રશિયા પહોંચ્યા બાદ આર્મીમાં જવાની ફરજ પાડવામાં આવતી હતી। ₹3 લાખમાં રશિયામાં નોકરીની એજન્ટો લાલચ આપતા હતા। ગુજરાતના યુવાનો સાથે છેતરપિંડી કરી અને રશિયામાં યુદ્ધ લડાવ્યું છે। અમદાવાદના સરખેજના યુવાનને રશિયામાં યુદ્ધ લડાવવામાં આવ્યું છે। રશિયામાં સિક્યુરિટી હેલ્પરની નોકરી આપી અને યુદ્ધ મેદાનમાં તેને ઉતારવામાં આવ્યો હતો। ગુજરાતના યુવાનને રશિયામાં કાયમી રહેઠાણની લાલચ પણ આપવામાં આવી હતી। તો અમદાવાદના સરખેજના યુવાન તાહિરને છેતરપિંડીથી યુદ્ધ લડવા માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો। રશિયાથી હેમખેમ પરત આવેલા તાહિરની જીએસટીવી સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત પણ થઈ હતી। તો અત્યારે હાલ જે યુવાનને કહી શકાય કે ખોટી રીતે રશિયા લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાર પછી યુદ્ધમાં તેને મોકલવામાં આવ્યો હતો, તે જ તાહિર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। તાહિર, સૌથી પહેલા તો આપની સાથે જે બન્યું છે તેને લઈ અને જીએસટીવી ન્યૂઝ સંવેદના વ્યક્ત કરે છે। આપનું સ્વાગત છે। સૌથી પહેલા એ જણાવશો કે શું બની હતી આખી એ ઘટના? हमारी साथ एक घटना अभी बनी थी कि हमको बोला गया था यहाँ से कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्पर का जॉब रहेगा, आपको बॉर्डर पे नहीं जाना है, फायरिंग नहीं करना है, मॉस्को सिटी में रह के, रशिया सिटी में रह के आपको हेल्पर का काम करना है। यहाँ से हमको ऐसा बोला गया था। तो उसके बाद आपके साथ क्या क्या करवाया गया? उसके बाद उन्होंने आपसे क्या कहा? यहाँ से कौन सा कमिटमेंट दिया था और वहां पे जाके क्या करने के लिए आपको मजबूर किया गया? सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देखा जिसका अच्छा। चैनल था बाबा व्लॉग्स के नाम से। यूट्यूब पर चैनल है बाबा व्लॉग्स के नाम से। वहाँ पे मैंने वीडियो देखा, उसमें दिखाया गया कि गवर्नमेंट हेल्पर का जॉब है, सिक्योरिटी हेल्पर का जॉब रशियन आर्मी के लिए। उसमें ना तो जान को खतरा है, ना किसी भी तरह का आपको खतरा है, और उसमें आपको 2 लाख सैलरी दिया जाएगा और 6 महीने के बाद आपको रशियन पासपोर्ट भी मिल जाएगा। इस तरह का हमको बताया गया। और हमने उसके बाद जो मैंने देखा, वीडियो देखने के बाद मैंने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद उनसे मैंने पूछा कि किस तरह का काम रहेगा। उसने जो भी वीडियो में बताया था वो सेम जानकारी मुझे दी, और उन्होंने बोला कि 3 लाख इसका चार्जेस रहेगा, ये आपको पे करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे रशियन आर्मी में हेल्पर का जॉब मिल जाएगा और किसी भी तरह का जान का खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस था मैंने उनको जो भी पेमेंट वगैरह करके अपना अप्लाई करवा दिया। उसके बाद मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ आ गया। फिर यहाँ से मैं अहमदाबाद गुजरात से 15 दिसंबर को मेरी फ्लाइट हुई। उनका मुझे 13 दिसंबर को कॉल आया कि 15 दिसंबर को आपकी फ्लाइट है, आप रेडी रहना, आपकी फ्लाइट चेन्नई से रहेगी। तो मैंने ओके कर दिया और 15 दिसंबर को मैं यहाँ से निकल गया चेन्नई के लिए। चेन्नई में यहाँ से फ्लाइट लेके अहमदाबाद से चेन्नई पहुंचा। फिर चेन्नई पहुंचने के बाद मुझे वहाँ से जो उनका एक बंदा था बाबा व्लॉग्स का मोइन, उससे मुझे मिलवाया गया। उसने बोला कि आपका आगे कुछ प्रॉब्लम है, आपको चेन्नई में होल्ड करना है 1-2 दिन के लिए। वहाँ पे चेन्नई में हमको 1-2 दिन रुकाया गया और चेन्नई में मेरे साथ और भी बंदे थे।
टोटल वहाँ पे 11 बंदे थे। उसमें से 6 बंदों का पहले फ्लाइट हो गया, जिसमें हेमिल भी था, जिसका भी डेथ हो गया, वो भी 6 बंदों में था। और उसके बाद 2 बंदे का और फ्लाइट हुआ, लास्ट में हम 4 बंदों का फ्लाइट हुआ। हमारा फ्लाइट अटैच था, चेन्नई से बहरीन और बहरीन से मॉस्को। मॉस्को एयरपोर्ट पे हम जैसे उतरे, वहां पे हमको एयरपोर्ट पे एक बंदा लेने आया। वो बंदा था, उसका नाम था नाइजिल। नाइजिल बंदा हमको एयरपोर्ट पे लेने आया। उसके बाद एयरपोर्ट की उसने हमको रिसीव किया। उसके बाद हमको ले गया मॉस्को सिटी। मॉस्को सिटी में एक फ्लैट था, वहां पे हमको 1 नाइट का स्टे दिया गया। स्टे दिया गया, फिर हमने नाइजिल को पूछा कि हमको यहाँ पे सिक्योरिटी हेल्पर का ही जॉब मिलेगा ना, किसी भी तरह का खतरा नहीं हमारी जान को। तो नाइजिल ने हमको क्लियर किया कि यहाँ पे सिक्योरिटी हेल्पर का जॉब नहीं है, आपको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी 20-25 दिन की जो भी ट्रेनिंग होती है वो आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको बॉर्डर पे जाना ही पड़ेगा, आपको फ्रंट लाइन में जाना पड़ेगा। तो ये सुन के फिर हमने वहाँ पे, हमारा जो एजेंट था जो बाबा के थ्रू रसिया में काम करता है, जिसका नाम है मोइन, उसको हमने कॉल किया। तो वो वहाँ पे जो फ्लैट था मॉस्को में, वो वहाँ पे आया। उनसे हमारा बात वगैरह, उसने बोला ठीक है तुम टेंशन मत लो, हमारा आगे पूरा कमांडर से सेटिंग है, आप एग्रीमेंट साइन करोगे तो आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए आएगा, वो आप 1.5 लाख रुपए अपने पास रखना, बाकी का जो भी रिमेनिंग अमाउंट है हमको हमको दे देना, हम आगे कमांडर को दे देंगे, तो कमांडर आपको बॉर्डर पे नहीं भेजेगा। तो हम उनकी बातों में आ गए, हम 4 लोग। और जो हमारे से आगे लोग जा चुके थे वो ऑलरेडी ट्रेनिंग में जा चुके थे, उनके सारे लोगों के फोन बंद थे। हम उनके बात में आ गए। फिर हम वहाँ पे एक दिन रुके। फिर सेकंड डे जो था, नाइजिल उसने वहाँ की जो आर्मी है वहाँ पे कॉल कर दिया। फिर हमको वहाँ से गाड़ी लेने आ गई एक आर्मी की। तो हम 4 बंदे वहाँ पे गाड़ी में बैठ के, रसिया से 300 या 400 किलोमीटर एक आर्मी कैंप है, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ, हमारा मेडिकल वगैरह हुआ, और हमारा बैंक अकाउंट खुला, और हमको सिम दे दिए गए, और हमें बोला गया कि आपको अब यही सिम यूज करना है। उसके बाद हमको वहाँ पे भी एक दिन रुकाया गया। फिर वहाँ से हमको और आगे ले जाया गया, राइजान में। रसिया की सिटी है राइजान, वो बॉर्डर के नजदीक में ही है। वहाँ पे राइजान में, वहाँ पे हमको एक दिन रुकाया गया। फिर क्रिसमस वगैरह की वहाँ पे छुट्टी आ गई, तो काम वहाँ पे थोड़ा होल्ड हो गया। तो वहाँ पे हमको यूनिफॉर्म वगैरह जो जो भी थे आर्मी के, वो प्रॉपर जो पे आर्मी के यूनिफॉर्म थे, प्रॉपर सब कुछ हमको दे दिया गया वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे मोइन को फोन किया, जो वहाँ पे रसिया में जो बाबा का काम हैंडल करता है, मोइन। जी। उसको हमने कॉल किया। उसने बोला नहीं आप टेंशन मत लो, किसी भी तरह का टेंशन मत लो, आपके हेल्पर का ही जॉब है, आपका नॉर्मली जो भी ट्रेनिंग होगा। उसके बाद 1-2 दिन हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस का छुट्टी वगैरह आ गया था, तो वहाँ पे काम बंद था, बंदे आगे हमको ले नहीं जा रहे थे। वहाँ पे 1-2 दिन हमको वहाँ पे रुकाया गया था। उसी दौरान मेरी काफी लोगों से मुलाकात हुई जो बॉर्डर से इंजर्ड हुए, वो आए हुए बंदे थे। उसमें इजिप्ट के बंदे थे, कुबा के बंदे थे, अजरबैजान के बंदे थे, और लोकल रशियन लोग भी थे, और सबसे ज्यादा नेपाली लोग थे। तो जो थे उनसे मैंने बातचीत वगैरह की, जिससे लैंग्वेज समझ में नहीं था, उनसे ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट से मैंने बात की। तो उनसे मैंने पूछा कि हम वहाँ पे कैसे, वहाँ पे हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बंदों ने मुझे, जितने भी बंदे वहाँ से इंजर्ड हुआ, आगे किसी को ग्रेनेड से इंजर्ड था, किसी को गोली लगी हुई थी, कोई ड्रोन से इंजर्ड था, तो किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, काफी ज्यादा हालत खराब थे। तो किसी ने उन दिनों मुझे ऐसा सजेस्ट नहीं है कि आप आगे जाओ। सारे बंदे मुझे ऐसा ही बोलते थे कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, अपने घर जाने की प्रोसेस करो, आप आगे मत जाना यहाँ से। जी। उसके बाद फिर से मैंने मोइन को कॉल किया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हम इस तरह से, और आगे जो हमारे बंदे गए वो भी हमारे कांटेक्ट में नहीं है, अभी हम यहाँ पे पीछे है, हमको भी पता नहीं कब आगे ले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन खराब है। तो मोइन ने हमको फिर से झूठ बोला कि नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगे, कोई भी तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा यहाँ पे पूरा सेटिंग है। उसके बाद उसी दौरान, उसके बात करने के बाद 3-4 घंटे के बाद जो हेमिल है, जिसका भी 1-2 दिन पहले डेथ हो गया, उसका फोन चालू हुआ। तो फिर मैंने हेमिल से कांटेक्ट किया ईमो पे। वहाँ पे इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह नहीं चलता है, वहाँ पे ईमो या टेलीग्राम ही चलता है। जी। तो मैंने ईमो पे हेमिल को मैसेज डाला। उन्होंने बोला हेमिल आगे का क्या सिचुएशन है, हमको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो हेमिल ने मुझे बोला कि अपने साथ फ्रॉड हो गया है, तो यहाँ पे किसी भी तरह वापिस जाने की कोशिश कर, आगे मत आना यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ जान का जोखिम है, हमको हाथ में गन वगैरह दे दी गई है, हमारा ट्रेनिंग चालू है। हेमिल एक्चुअली यूक्रेन में ही था, यूक्रेन में जहाँ पे लुगांस्क करके है, यूक्रेन में, जी। जो भी रशिया ने कैप्चर कर लिया, रशिया ने कैप्चर किया लुहांस्क करके, वहाँ पे उसका ट्रेनिंग चल रहा था। उसने बोला कि मेरे को यहाँ पे 15 या 12 दिन का ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद मेरे को आगे सीधा फ्रंट लाइन पे ले जाएंगे, क्योंकि मैंने कमांडर से बात कर ली है, और जो मोइन वगैरह है वो मेरा कॉल वगैरह कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है। जी। मैंने बोला अच्छा। लेकिन हेमिल के फादर जो थे वो मोइन से कंटिन्यू बातचीत में थे, और उन्होंने उनका वापस आने का जो भी प्रोसेस था वो भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसी दौरान हेमिल का डेथ हो गया था। लेकिन हेमिल ने जो भी है खुल के किसी, जितने भी बंदे थे, हमने किसी ने भी खुल के अपने घर पे नहीं बताया था कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या हालात है। जी। जी। ठीक है, जी। उसी दौरान फिर मैंने कमांडर से बात की। मैंने बोला सर हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ चीटिंग हो गई है, हमको आगे नहीं जाना है, हमको वापस भेज दो। कमांडर ने बोला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते हो, आपको 1-2 दिन में आगे ले जाना ही पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग के बाद फ्रंट लाइन में जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कमांडर को पूछा कि सर ठीक है हम आगे जाते हैं, हमारा वापस आने के चांसेस कितने हैं।
कमांडर ने मुझे क्लियर ही बता दिया, अगर आप आगे जाते हो तो आपके वापस आने के चांसेस 10% ही है। तो वही सुन के मेरे साथ में एक कोलकाता का बंदा था जिसका नाम सरफराज था, वो वहाँ पे डर गया और पैनिक हो गया। और उसी टाइम पे वो थोड़ा अंधारा हुआ तो वहां से वो भाग गया रायजान से। और वहां से भागने के बाद वो सुबह में किसी भी तरह से मॉस्को इंडियन एम्बेसी पहुंचा। इंडियन एम्बेसी पहुंचने के बाद उसने जो भी था वहां पे सब इंडियन एम्बेसी में बताया कि मेरे साथ इस तरह से हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तो मुझे कुछ भी करो यहाँ से वापस भेज दो। तो इंडियन एम्बेसी ने उसकी पूरी बात सुनी, सब कुछ किया, उसके साथ जो भी उसने बोला सब कुछ लिखा, उसका बयान वगैरह सब कुछ लिया। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने बोला कि आप जहाँ से हो वहाँ पे आप वापस चले जाओ, हम आपको निकालने की लीगल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सरफराज का मेरे को फोन आया कि ऐसी सी बात है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो सरफराज ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पे जो था ऑफिसर ने, जो भी कमांडर वगैरह था, उसने मेरे को बता दिया था कि अगर ये वापस आएगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था रशियन लैंग्वेज में कि अगर आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे बगैर यहाँ से भागते हो या भागने की कोशिश करते हो तो आपको 7 साल की जेल होगी, या तो उसके बाद आपको सीधा फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाएगा। तो सरफराज को ये पता था कि अगर मैं वापस आऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, या तो मेरे को जान भी जा सकती है, मेरे को फ्रंट लाइन में भेज सकते हैं, या मेरे को 7 साल की जेल भी हो सकती है। तो सरफराज ने मुझे कॉल करके पूछा कि मैं क्या करूं। मैंने बोला कि देख, यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर सरफराज वहाँ पे भागा था तो हम तो वहाँ पे साथ में ही थे, उसके लिए उस हिसाब से मेरे पास से 2 दिन के लिए मेरा फोन भी ले लिया गया था और मुझसे पूछपरछ भी की गई थी, लेकिन मैंने उनको कुछ बताया नहीं था। उसके बाद 1-2 दिन बाद मेरे को भी वहां से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद सरफराज का फोन वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, वो अभी किसी भी तरह से वो कांटेक्ट में नहीं है मेरे। उसके बाद फिर से मैंने कमांडर से रिक्वेस्ट की, मैंने सर हमारे साथ इसी तरह फ्रॉड हो गया, हमको तुम आगे मत भेजो। तो कमांडर ने मेरी बात सुनी, उसके बदले में मैंने बोला ऐसा हो तो आप मेरी सैलरी से, अगर मेरी सैलरी आती है तो मैं कुछ पैसे आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे आगे मत भेजो। तो कमांडर मेरी बात से एग्री हो गया कि ठीक है, आप सैलरी से कुछ पैसे मुझे देना, मैं आपको आगे नहीं भेजूंगा, लेकिन ये आपको मैं जितने दिन यहाँ पे रखता हूँ वो टाइम आपकी ट्रेनिंग में से कम होता रहेगा। मैंने कमांडर से एग्री किया। उसी दौरान फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसका चैनल है F2 पठान नाम से, उनका नाम असली नाम है राजा पठान, वो चंडीगढ़ से। उनसे मैंने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट वगैरह किया और उनसे नंबर वगैरह लिया। फिर उनसे मैंने कॉल किया कि मैंने बोला ऐसी ऐसी मेरी सिचुएशन है, मैं यहाँ से फंसा हुआ हूँ, मेरे को यहाँ से निकलना है। उन्होंने मेरी फिर हेल्प की, उन्होंने मुझे 2-3 जगह पे मेल करवाया, उन्होंने मेरी जो वहाँ पे रशियन में है, रशिया में कमांडर वगैरह, उनसे बातचीत वगैरह करवाई। फिर उन्होंने मेरी वापस आने की प्रोसेस स्टार्ट की। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह मुझे वहाँ से अरेंज करवा के दिया, कमांडर वगैरह से बातचीत करवा के उन्होंने सिर्फ सारे प्रोसेस के लिए मुझे निकलवाने की, पासपोर्ट वगैरह वहाँ से मेरा अरेंज करवा के दिया। फिर वहाँ से मैं अपना पासपोर्ट लेके मैं वहाँ से राजस्थान से मॉस्को आया। मॉस्को आके मैंने मेरे एजेंट को कॉल किया कि मुझे यहाँ से निकलना है तो मेरी हेल्प करो, लेकिन मेरी किसी भी तरह से मेरे एजेंट ने हेल्प नहीं की। उसके बाद फिर जो भी F2 पठान करके बंदा था उसने मेरा 1 दिन के लिए हॉस्टल में रहने के लिए जो भी था वो सब इंतजाम करवाया। वहाँ से फिर मेरी टिकट वगैरह हुई मॉस्को से दिल्ली की, फिर दिल्ली से मैं यहाँ पे गुजरात आ गया। जी जी बिल्कुल। ताहिर, ये जो पूरी बात आपने यहाँ पे रखी है, आपने बताया कि आपके साथ साथ 11 लोग और भी थे, तो वो लोग कहाँ से थे? वो लोग गुजरात से थे या फिर और कोई स्टेट में से थे? नहीं, गुजरात से तो एक ही बंदा था जिसका नाम है हमिल, उसकी डेथ हो चुकी है। जो दूसरे 4 बंदे थे वो हैदराबाद से थे, और जो 2 बंदे थे वो कश्मीर से थे, और एक बंदा था वो कोलकाता से था, जी। और एक ये बंदा जो था वो आप दार्जिलिंग से था। और ये जो आप बात कर रहे हो हैमिल की, उनकी डेथ कैसे हुई, उसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है या नहीं? हेमिल मेरे कंटिन्यू मेरे कांटेक्ट में ही था। वो जब जब से वो ऑनलाइन आता था तो मुझसे बात करता था। लास्ट उससे बात मेरी 3-4 दिन पहले हुई थी। उसने बोला था कि हम फ्रंट लाइन से बहुत ही नजदीक है, हमको गोलियां वगैरह की आवाज सब कुछ आ रही है, हमारी जान को खतरा ही है, लेकिन हमारी निकलने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। उसने इतना ही बोला था। उसके बाद जो उनके साथ एक समीर करके बंदा है जो कि हैदराबाद का है, वो 1-2 दिन पहले मेरे कॉन्टेक्ट में आया। उसने बोला कि हेमिल की डेथ हो चुकी है, बोले वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ था तो हेमिल की डेथ हो चुकी है। हेमिल को सिर पे जो ग्रेनेड, जो वहाँ पे जो ड्रोन अटैक हुआ था उसके सिर पे कुछ लग गया, तो 8 टाइम उसकी डेथ हो चुकी है। जी बिल्कुल। ये जानकारी मुझे समीर ने दी, जी वो भी वहाँ पे ही है। जी ताहिर, आपने सरफराज के बारे में बताया कि जिन्होंने इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट किया था, तो वहां से सरफराज को मतलब जो रिस्पांस है वो कैसा मिला, और आपके लिए भी इंडियन एम्बेसी ने कुछ हेल्प नहीं, की? वो वहाँ से उसको रिस्पॉन्स किसी भी तरह का नहीं मिला। उसके सिर्फ जो स्टेटमेंट था वो ले लिया गया। उसके बाद उसको किसी भी तरह के फिर पता नहीं कॉन्टेक्ट किया या नहीं किया, क्योंकि सरफराज अभी मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है। और ऑलरेडी वहाँ पे एक अफान करके बंदा फंसा हुआ है, उसने 3 बार, उसके पास पासपोर्ट नहीं, वो बगैर पासपोर्ट के वहां से निकल गया है। उसने 3 बार इंडियन एम्बेसी विजिट किया, लेकिन उसका भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया, वो अभी मॉस्को में ही छुपा हुआ है कहीं पे। जी
तो ताहिर, आपकी बात हुई थी इंडियन एम्बेसी के साथ, यहाँ पे आके आपने गवर्नमेंट से कुछ बातचीत की? और मैंने वहाँ पे जब मैं क्राइसन कैंप में था तभी मैंने वहाँ पे रशियन एम्बेसी में बात की थी। रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में, वहाँ पे एक चड्डा सर करके थे, उनसे मैंने बात की थी। मैंने बोला सर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है, आप ऐसा हो तो मुझे यहाँ से निकलवा दो यहाँ पे, और आगे जो मेरे बंदे जा चुके हैं वो भी फंसे हुए हैं, वो भी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो मैं आपसे बात करूँ, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है, तो मैंने बोला हाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लेकिन रशियन लैंग्वेज में था, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है सर, हमें यहाँ से निकलना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको 20 दिन भी लग सकते हैं, 22 दिन भी लग सकते हैं, या 2 महीने भी लग सकते हैं, जो भी लीगल प्रोसेस होगा आपको निकलने में टाइम लगेगा, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। जी ताहिर, जिस YouTube चैनल से आपने, ये जो बंदा है मोइन, उसका संपर्क किया, वो YouTube चैनल अभी भी चल रहा है? ये YouTube चैनल अभी भी स्टार्ट ही है। मैंने मोइन से संपर्क नहीं किया, मोइन से संपर्क मैंने किया है संपर्क बाबा व्लॉग्स से। बाबा व्लॉग्स नाम से चैनल है YouTube पे, उसका असली नाम है फैजान खान। मैंने उनसे कांटेक्ट किया और उनका कांटेक्ट था आगे जो मोइन है, मोइनुद्दीन, वो जो राजस्थान के, वो अभी रशिया में ही है। सबसे बड़े फ्रॉड वो ही है, उन्होंने सबसे फ्रॉड किया। जी, तो वैसा तो क्या दिखाते हैं ये बाबा ब्लॉग्स वाले कि आप जैसे कहीं ऐसे युवा जो होते हैं वो ये सारी चीजों में फंस जाते हैं? वो जो बाबा ब्लॉग चैनल है उस पे किस तरह के वीडियोस वो लोग अपलोड करते हैं? वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, इसे बोलते 6 महीने में आपको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाएगा, आपको PR मिल जाएगा, आगे की आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, आपकी 2 लाख सैलरी है तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको सिर्फ 6 घंटे ही काम करना रहेगा, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, और आपको सिटी में रह के काम करना है, और हेल्पर का काम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ जाके जो हमने देखा, सिचुएशन ही पूरा चेंज था, क्योंकि सिटी में रहने का कुछ काम नहीं था, और सीधा ट्रेनिंग भी जो दी जा रही थी वो भी लुहांस में यूक्रेन बॉर्डर पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, और ट्रेनिंग वहाँ पे जो हमारे बंदे रहते थे वो भी बंकर में ही रहते थे। जी ताहिर, तो यहाँ पे आप इंडियन एम्बेसी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? उनका जो योगदान, या इंडियन एम्बेसी में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने मेरे वहाँ पे सारे दोस्त लोग फंसे उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाले, क्योंकि वो जिस तरह की सिचुएशन में है, जब भी उनसे बात होती है तो तब भी बात करते तब वो मेरे से रोते और मुझसे रिक्वेस्ट करते कि कुछ भी कर ऐसे हमको निकाल, लेकिन मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। तो मैं जितना हो सके मैं इंडियन एम्बेसी पे मेल कर चुका हूँ, सब जगह में मेल कर चुका हूँ, लेकिन किसी भी तरह के कहीं से भी अभी कुछ रिप्लाई आया नहीं है, और उनके फैमिली वाले भी काफी ज्यादा अभी परेशान है, ठीक है, क्योंकि उनके भी घर पर सब पता चल चुका है, और इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक उनको वहां से कुछ किसी भी तरह की हेल्प पहुंची नहीं है, और इतनी सारी न्यूज वायरल होने के बाद भी, पता चलने के बाद भी उनको निकाला नहीं गया, और इसी दौरान न्यूज वायरल होने के बाद ही फैमिली की डेथ हो गई। जी ताहिर, तो आप ये बात मानते हो कि इंडियन एम्बेसी को जो काम करना चाहिए था, जो सपोर्ट करना चाहिए था, वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपको नहीं मिला है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपके आगे जो 6 लोग गए थे उनकी स्थिति अभी क्या है, वो उसके बारे में कोई अपडेट आपको मालूम है? हाँ जी 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 जी, और जो 6 लोग थे उसमें से भी लोग अलग अलग हो गए। जो 6 लोग थे उसमें से जो 3 लोग थे हैदराबाद वाले वो अलग हो गए, वो भी एक साथ में है, ठीक है, वो एक साथ में जो एक नईम बंदा है वो भी हैदराबाद का, और यूसुफ करके बंदा है वो कश्मीर का है, उसके भी पैर में अभी गोली लग चुकी है वहाँ पे। जी ताहिर, तो उनके भी आपके, हाँ बताइए, आप पहले बताइए अपनी पूरी बात। हाँ जी, और जो अस्फान करके जो आगे बंदा है, अस्फान करके, उसके भी पैर में 2 बुलेट लग चुकी है, लेकिन वो भी किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं है, और जो एक अहमद करके बंदा है उसकी भी ऐसी खबर आई कि उसकी भी डेथ हो चुकी है। जी बिल्कुल ताहिर, आपको वहां पे ले जाया गया, उससे पहले आपके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था, तो ये सारी जो चीजें हैं, बॉर्डर पे भेजा जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी चीजें उसमें मेंशन की नहीं गई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, किसी भी तरह का मेंशन नहीं किया गया था, और हमको तो जब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हम रायजान पहुंचे तब हमको जाके पता चला कि हमको बॉर्डर पे जाना है, क्योंकि हम जब तक मॉस्को में थे तब भी हमारे साथ ऐसा क्लियरनेस नहीं था कि हमको बॉर्डर पे जाना है, हमको ऐसा बोला ट्रेनिंग में आपको कैंप में ही दी जाएगी। जी, तो आपने आगे बात की, कोई एक बंदा था जिसने आपको बताया कि अदरवाइज जेल में डाल देंगे या फिर ऐसा होगा कि बॉर्डर पे भेज देंगे, तो वो सारी चीजें तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई थी। जो हमारा कमांडर था मेन, जिससे मैंने बात रिक्वेस्ट की थी वहाँ पे रुकने के लिए, उन्होंने ही मुझे बोला था। तो मतलब अभी कितने लोग वहां पे फंसे हुए हैं? जैसे आप तो वापस आ गए हो, अच्छी बात है, लेकिन अभी कितने लोग वहां पे ऐसे फंसे हुए हैं? वहाँ पे इंडिया के अभी 30 से 35 लोग फंसे हुए हैं। एक बाबा ब्लॉग से भी गए, और एक दूसरा भी चैनल है जो फटाफट न्यूज के नाम से है, वहाँ से भी लोग गए हुए हैं। और जो वहाँ पे अपने जो रशियन लोग
रशिया में जो स्टडी करने के लिए गए थे स्टूडेंट, वहाँ पे भी उन्होंने तो हमसे भी पहले रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी, वो भी बहुत ही आगे, उनके पास किसी भी तरह का किसी से भी कांटेक्ट नहीं है, वो लोग भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल। ताहिर, आपको वहां से वापस आने में कोई दिक्कत हुई या फिर कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आपको सहन करनी पड़ी? वहां से आप जब वापस आए तो कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा या नहीं? दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वापस आना वहाँ से, जो जहाँ पे मैं था वहाँ से तो इजी था, लेकिन जो मेरे जहाँ पे ये लोग अभी है बॉर्डर पे, वहाँ से आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैं था, वहाँ से वापस आने की प्रोसेस थोड़ी इजी थी, लेकिन ये लोग जहाँ पे जा चुके हैं ना, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। जी बिल्कुल। तो वहां पे जो बंदा आपको मिला था, जो कमांडर आपको मिला था, उसने हाँ, आपको उसने सपोर्ट किया? उसने मेरी हेल्प की। अगर वो नहीं होता, वो मेरी हेल्प नहीं करता, तो मेरा भी चांसेस नहीं था वापस आने का। जी बिल्कुल। तो यहाँ आप इंडियन गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है उसकी मुख्य दो वजह है, ये यूट्यूब चैनल, जिसकी वजह से आप जैसे कई लोग इसमें फंस रहे हैं। तो इसके बारे में आप इंडियन गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहोगे? इंडियन गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूंगा कि जो सारी जो वीडियो बना के डालते हैं जॉब वगैरह की, ये सबको बंद कर दिया जाए। जो सरकार जो इंडियन की इससे कुछ चैनल है वो स्टार्ट किया जाए, जो ट्रस्टेड जॉब अपने को दे सकती हो इस तरह से। क्योंकि अभी यूट्यूब पे काफी सारे फ्रॉड चल रहे हैं, और ये भी था हमारे साथ, टोटली फ्रॉड ही हो चुका है। और ये पूरी चेन है, ये एक ही बंदा नहीं है, इनके साथ बाबा व्लॉग्स है, सुफियान है, फिर जो चेन्नई में मोइन है, अभी मोइन रशिया जा चुका है, उसके वहाँ पे नाइजिल है, रमेश है। ये पूरी चेन है, पूरी चेन है, ये पूरे लाइन से काम करते हैं और वहाँ पे बंदों को सप्लाई करते हैं। जी आभार ताहिर, અમારી સાથે જોડાવા બદલ। અને સમગ્ર કહી શકાય કે આજે ગંભીર ઘટના અત્યારે હાલ ચાલી રહી છે તેના વિશે માહિતી આપવા બદલ ધન્યવાદ। આપ અમારી સાથે જોડાયા। તો અત્યારના હાલના મહત્વના અને મુખ્ય સમાચાર જે છે જીએસટીવી ન્યૂઝે આપ સુધી પહોંચાડ્યા છે। આખું આ એક નેટવર્ક ચાલી રહ્યું છે ખોટી રીતે યુટ્યુબ પર, જે ચેનલો છે તેમાં બતાડવામાં આવે છે કે તમને રશિયામાં નોકરી આપવામાં આવશે અને ત્યાર પછી ત્યાં લઈ જઈ અને યુક્રેન સામે યુદ્ધ લડવા માટે તમને કહી શકાય કે બોર્ડર પર મૂકી દેવામાં આવે છે। એક રીતનું આખું આ એક કૌભાંડ અત્યારે હાલ ચાલી રહ્યું હોય તેવું સામે આવી રહ્યું છે। ત્યારે રશિયાથી પરત ફરેલા તાહિર સાથે આપણે વાતચીત કરી હતી। એક હેમિલ નામનો યુવક છે, તે અત્યારે હાલ તેનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે। અન્ય જે યુવકો અત્યારે હાલ ત્યાં ફસાયેલા છે તેમની સ્થિતિ પણ કફોડી બની છે। ત્યારે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે આમાં ઇનિશિયેટિવ લઈ અને તાત્કાલિક ધોરણે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ અત્યારે હાલ તાહિર દ્વારા પણ કરવામાં આવી છે। અને અનેક એવા પરિવારો કે જેમના યુવાનો અત્યારે હાલ રશિયામાં ફસાયેલા છે તેમના પરિવારજનો દ્વારા પણ આ માંગ કરવામાં આવી છે। પરંતુ અહીંયા સૌથી વધારે ચેતવા જેવી બાબત એ છે કે યુટ્યુબ ચેનલ પર જે રીતે અત્યારે આ રીતના વિડીયો બતાવવામાં આવતા હોય છે અને તેમાં જે રીતે લોકો ફસાતા હોય છે, ત્યારે આમાં સાવચેત રહેવાની જરૂર છે। બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું। અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો જીએસટીવી ન્યૂઝ। નમસ્કાર।